Hello everyone. Yeah, good afternoon. So hope you are okay and very energetic to this session. If you are listening to me, then please give me thumbs up. Yeah, good afternoon, Akshay. So are you excited? Okay. So let's start. So last, lastly, in the last lecture, we have gone through the Redshift query editor and the different architecture of Redshift, why we prefer Redshift over other data warehousing techniques. So, so let's start with some questions related to Redshift. Okay. So, why we choose the Redshift? Give me in a single word or two word answer if all are okay. Why we choose Redshift over other data warehousing techniques? Yeah, it's a data warehousing, but why only Redshift? Long time storage, yeah, correct. Fast querying, hmm. And performance, cost optimization, columnar, yeah, security, yeah, definitely. Hmm. So these are some benefits over different databases related to Redshift. Okay. So last we stuck on the query editing, or we are stuck on the copying the data from S3 to Redshift. Okay. So it's the error which I told, it's related to some data schema related error. So maybe data types are differ, which I have used the file. The data types are different. Okay. So now we are just log into new 1 minute. I'm sharing my screen. Let me know when the screen is visible to you. Okay. Yeah, please. Okay, visible. Everyone, I hope so. Screen audible to you. Okay. My voice is also audible to you clearly. Okay. Yeah, sure. Thank you. So now we are starting with the where we stuck actually. We start from there. So this is a Redshift cluster which we have created yesterday. So we just query the data. Okay. So last time, what happened? The file which we are inserting is not matching the schema which we have created the table in the Redshift. Okay, so what we have created in the last section is tweets table, uh, and that table schema doesn't match to the existing schema of the file which is in the S3. Okay, so I have tried for the same, but I think there is a lots of mismatch with the schema. Actually, it is not taking the timestamp from the given timestamp from the existing file. So I have just changed the file. So in my S3 bucket now, this is our S3 bucket. Now we have three files. Okay, so we are going to fetch this file from S3 to Redshift with the copy command. Okay, directly. So basically, what we have done, we have just creating some table
currency, and after that with the these this file contains three column, code, symbol, and name of the country. Okay, code of the country, symbol of the country, and name of the country. And this table, after creating this table, we just copy the data or exact file from the S3 to the Redshift cluster. Okay, so before we have to start, we have to connect our database, whatever database we are using in Redshift. We have to connect the database, and then we have to start our uh, start querying the file. Okay, so we just connected here. It is showing the status connected. Okay, so we have just connected. Okay, so now right now here we have to, okay, right now we just create the table. Okay, already exists. Yeah, I have already created this currency table, so it is showing already exists table. So with the existing table, we can just insert the data from copying command from the S3 and using the IAM role. Okay, so I'm using this copy command and run this query. So it is completed. Okay, here we can check the table currency and the scheme also. And if I select this, I have to check the data available in the currency table, then I should run this command. And you are able to see the data as well. Okay, so this is the data available in the currency table. So you can try with the same copy command uh, in the Redshift and give, but make sure the schema should be matched with the existing with the table which you are creating in the Redshift. Okay, so this is the basically, but what happened, every time we cannot run the copy command for individual data set. Okay, we have to make some pipeline, or we have to make some orchestration related to fetching the data from Redshift or any other cluster. Not only Redshift, we can pipeline our data from the RDS to Redshift, or from Redshift to RDS, so from S3 to Redshift, from Redshift to S3, whatever it may be. So in between, we have to use AWS Glue. Okay, AWS Glue is nothing but it's a pipeline building tool or ETL tool used in AWS services. Okay, for ETL process, different ETL process. If we have to orchestrate different ETL process, then we have to use AWS Glue. Okay, so now right now we will create some ETL jobs with the help of AWS Glue. Okay, so यहाँ तक सबको क्लियर है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए और गिव मी थम्स अप, और या कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. Can we delete 1 minute? Can we delete something which we created here if we don't want? Means what you want to delete, Akshay? You want to delete the table or data? Table, huh? You can. You can drop the table. There are two commands: drop the table and truncate the table. If you drop the table, then the data of the table will completely gone. Okay. Mm, and truncate, you can also truncate the table. Okay, और अगर आपने ट्रंकेट कर दिया तो वो टेबल कंप्लीटली गॉन हो जाएगा, और अगर ड्रॉप किया तो वो टेबल का स्कीमा गॉन हो जाएगा. ओके, तो आप ये दो मेथड से भी कर सकते हैं. अल्टर जितने भी एसक्यूएल के क्वेरीज हैं यू कैन अप्लाई इन द रेडशिफ्ट क्लस्टर, ड्रॉप करने के लिए और ट्रंकेट करने के लिए, क्वेरी एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अल्टर टेबल करने के लिए, टेबल का स्कीमा भी आपको चेंज करना है तो यू कैन यूज अल्टर टेबल कमांड. ओके, so in the similar fashion,
whatever you are using, whatever you have a knowledge of SQL, then you can apply the SQL knowledge into the Redshift cluster. Okay, हमने आर्किटेक्चर तो देखा है रेडशिफ्ट का, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगने वाला है ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ अगर कोई एरर आता है, कुछ आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। ओके, और मैं किसी की फाइल, वो सॉरी, किसी का क्वेश्चन मिस कर रही हूँ क्या? ओके, हाउ टू कनेक्ट टू डिफरेंट सोर्सेज टू गेट डेटा इन रेडशिफ्ट। या तो आज के लेक्चर में हम वही बताएंगे कि डेटा रेडशिफ्ट क्लस्टर में कैसा लाना, और विद द हेल्प ऑफ ग्लू हम एक करेंगे कि हम डेटा लेकर आएंगे रेडशिफ्ट में, और वो भी इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के थ्रू। एक जॉब हमको शेड्यूल करना होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लू, एंड वी कैन शेड्यूल दैट जॉब, एंड ऑन जो भी हमने शेड्यूलिंग पैरामीटर्स लगाए हैं उस जॉब पे, अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर द जॉब विल रन। ओके, तो यहाँ तक, हाँ, पाइपलाइन के, यस करेक्ट, पाइपलाइन की तरह। तो अभी हम AWS ग्लू पे स्विच कर देंगे और समझेंगे AWS ग्लू को, एंड देन विल स्टार्ट टू बिल्ड अ पाइपलाइन और टू रन अ जॉब इन AWS ग्लू। ओके, 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 आई जस्ट लॉग, एक्चुअली ये अकाउंट अलाउ नहीं कर रहा मेरे को क्रॉलर रन करने के लिए AWS ग्लू का। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल लॉग इन विद द डिफरेंट अकाउंट। ओके, sorry, so we will start with the AWS glue. Okay, so before that, I will show you in S3 I have created some buckets related to glue, this glue bucket. Okay, here I have created three folder, basically data, script, and temp. In data we have database, customer database, and here customer database we have custom packet and custom CSV. In custom packet, we took the CSV file from this location, from the customer CSV. Data load is a file actually, and here is a file. So we fetch that file into the glue with the help of glue job. Okay, and after that we just uh, create that CSV file or turn that CSV file into Parquet file, and we store result back to the S3. Okay, with the in the same database table, but in the different folder, that is customer Parquet folder. Okay, so we will start from this. Uh, so this is the glue you console. Okay, so from that you can create. So what are different components and other stuff in glue? So basically, glue is nothing but it's a ETL, as I know. It's a serverless ETL process. One should I will add. Why it is serverless? Because we don't have to worry about the servers. Okay, all the server related and network related configuration is taken care by the AWS only. Though there are server, but we are not part of the to handling that server. Okay, so we are just using the ETL process. Okay, with the help of this AWS glue. So what are different component in the AWS glue? So there are basically, we have to check the data catalog. Okay, before that we can say uh, there are different 1 minute, I will show you on this board. Okay, let me टेल कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, व्हाइट बोर्ड। सो
what will happen basically, whatever the sources are available as a data source, maybe it's Redshift, maybe it's other data APIs there are. So there is a data source available, okay? And with the help of crawler, there is a crawler. सॉरी मेरी ड्राइंग गंदी है, तो दिस इज द क्रॉलर. विद द हेल्प ऑफ ये डेटा सोर्सेस है, ये this data source is related to the data sources which is available in the on the glue console. ओके, तो यहाँ से आपको क्रॉलर जो है वो डेटा सोर्स पे क्रॉल करता है और वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल इट विल स्टोर इनटू द डेटा कैटलॉग. डेटा कैटलॉग ये एक persistent डेटाबेस है जो persistent मेटा डेटा को स्टोर करता है वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल इन द डेटा सोर्स, आइदर इट इज टेबल और डेटाबेसेस, डिफरेंट डेटाबेस. तो हम ग्लू में बहुत सारे डिफरेंट डेटाबेसेस स्टोर कर सकते हैं. Hello, Connor. Sorry to disturb सॉरी. you, but your screen is not visible. ओके ओके, सॉरी सॉरी. ओके, आई लॉस्ट योर मैसेजेस. ओके ओके, सॉरी. नाउ इट इज विजिबल टू यू. Yeah, now it's visible. Go ahead. ओके ओके, Thank you. थैंक यू थैंक यू. तो कब से ही नहीं विजिबल हो रही थी इसकी, कहाँ तक आप लोगों ने देखा है, सो दैट आई कैन रिपीट. ओके 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 ओके, ग्लू ग्लू से. ओके, तो ग्लू का जो मैंने है कंसोल बताया आपको, ये हम अभी जस्ट वी हैव लॉग इन इनटू द ग्लू कंसोल. और मैंने S3 के जो बकेट्स बताए वो आप लोगों ने देखे, हैव यू सीन दैट? अच्छा ठीक है, मैं एक बार S3 के बकेट्स बता देती हूँ आपको एंड देन वी विल स्टार्ट विद दैट. So hope the screen is visible to you. Actually, chat is unseen to me. So can anyone unmute yourself and told me, or at least just Yes, Connor. Screen is yeah yeah, visible. okay, yeah. Thank you. So this is a S3 bucket which I have created for this glue job. In this S3 bucket, I have created three folders basically. Okay, data, script, and temp data. This will I will show you after that. But for this job, we need data, script, and temporary data. So now in data folder, if we move, I have created customer database. Okay, and in customer database, two folders I have created: customer packet and customer CSV. So in this CSV folder, we have our data, the CSV file, and this CSV file we fetch uh, from S3 and convert this CSV file into Parquet file format and store that Parquet file into the this folder. Okay, customer Parquet folder. Okay, now this folder is empty. If you are able to see, this folder is empty. After creating the job and after running that job, that output will directly store into this location. Okay, तो अभी हम उसके लिए AWS ग्लू पे जा रहे हैं. तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि जो बकेट्स है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी हमने क्रिएट कर दी है. ठीक है, अभी यहाँ पे हम जाएंगे AWS ग्लू पे. तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, this data sources. Okay, so these are some data sources which is uh, in the glue console. Okay, we have to store our some data sources or whatever the data sources is available like Redshift and other stuff. We just extract that data from that and transform it, and then simple to data, whatever our data target, maybe it's Redshift, maybe it's RDS, whatever data target are there,
we can store that data into our data target, and these are some data sources. Okay, and what the all process and transformation and extraction will be done by this AWS Glue. This is the AWS Glue. So before going to transform, whatever the data Glue extract will store into his database or data sources in the form of tables. Okay, whatever the tables we can give, it will store in that table, and that table ये टेबल में जो डेटा आएगा वो किसकी मदद से आएगा, क्रॉलर की मदद से. क्रॉलर एक ऐसा जॉब होगा जो रन होगा ऑन द कहाँ पे रन होगा, जो भी हमने डेटा सोर्स दिया है उसके ऊपर जाके वो जितने फाइल्स है वो डेटा सोर्स में 1 2 जितने भी हमने दिए हैं, या फिर एक कुछ पर्टिकुलर नाम दिया है तो वो फाइल जाके सर्च करेगा और उसमें जितना भी डेटा रहेगा वो स्टोर कर देगा डेटा सोर्स में, एंड देन डेटा कैटलॉग में उसका मेटा डेटा स्टोर होगा permanently, and we can transform that data with the help of scripts, some scripts. तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज होगी वो बेसिकली पाइथन स्पार्क बेस्ड स्क्रिप्ट्स होगी, मतलब जो उसका इंजन रन होगा वो स्पार्क इंजन में रन होगी. स्क्रिप्ट कौन से भी फॉर्म में ले सकते हैं हम, पाइथन, जेसॉन, व्हाटएवर, सॉरी जेसॉन नहीं, पाइथन फॉर्म में स्क्रीन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं हम अब, और पाइस्पार्क में भी लिख सकते हैं. जो भी स्क्रिप्ट है हम अपनी स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, या डेवलपर जो बना रहा है वो भी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम जब ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक ऑटोमेटिक भी स्क्रिप्ट बिल्ड होती है ग्लू में, एंड दैट विल हेल्प टू रन दैट प्रोसेस. ओके, बट बेसिक जो बिहाइंड इंजन है वो स्पार्क इंजन यूज होता है. और हम यहाँ पे जो डेटा टारगेट है वो डिफरेंट, जब भी हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं कंप्लीट, फिर वो सारा डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, डेटा टारगेट में. अब डेटा टारगेट क्या है, डेटा टारगेट कुछ भी हो सकता है, रेडशिफ्ट हो सकता है, और ग्लू सॉरी आरडीएस हो सकता है, और हाइव मेटा स्टोर हो सकते हैं, वॉट एवर. यहाँ पे हमको एपीआई यूज करके हम डेटा टारगेट को टारगेट कर सकते हैं. ओके, तो ये बेसिक उसका फ्लो है कि कैसा होगा ग्लू जॉब्स, कैसा वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, कैसा ट्रांसफॉर्म करेगा, एंड कैसा लोड करेगा. ओके, so now we will move to the hands on related to this. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. आई एम जस्ट चेकिंग द दिस चैट. ओके, जब से अच्छा, इज डेटा स्टोर एंड सोर्स सेम? नहीं नहीं, डेटा स्टोर और सोर्स सेम हम ऐसा नहीं बोल सकते. हाँ, डेटा सोर्स जो रहेगा वो हम वहां से जस्ट हम लोग लेंगे डेटा वहां से. ओके, और डेटा स्टोर जो रहेगा, डेटा सोर्स जो कुछ भी हो सकता है, रेडशिफ्ट हो, एथीना हो, या फिर एस थ्री हो, सॉरी एथीना S3 होगा, या फिर आरडीएस होगा. वहां से हम ये डेटा सोर्स होगा वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो डेटा स्टोर में स्टोर करेगा. ओके, डेटा स्टोर में कहाँ कौन सा ये डेटा स्टोर, इट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर ग्लू डेटा स्टोर. ओके, नॉट अदर डेटा स्टोर. हम ग्लू में ग्लू कंसोल पे एक डेटाबेस बनाएंगे एंड दैट विल एक्ट एज अ डेटा स्टोर. ओके, उसमें बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, उसमें हम डिफरेंट पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं. According to that, our data will store into that data store. Okay, and from that data store हम डेटा कैटलॉग में मेटा डेटा यूज स्टोर करके हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ओके, यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस बोल पूछ रहे हैं आप इमरान? पाइस्पार्क का? अच्छा, ग्लू को शॉर्ट में रिपीट करना है. ओके, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम. प्लीज एक्सप्लेन क्रॉलर वंस. ओके, ओके, या क्रॉलर एक स्क्रिप्ट होती है. एक क्रॉलर, अभी अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि क्रॉलर बोले तो एक जॉब टाइप हम एक रन करते हैं. हम जो भी है एक प्रोग्राम होता है वो जो कनेक्ट करता है डेटा स्टोर को, मतलब जो स्टोर रहेगा सोर्स और टारगेट जो भी, एंड थ्रू दैट प्रोग्राम वी कैन प्रायोरिटाइज द, जो भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत सारे जो भी क्लासीफायर्स यूज होते हैं उसको, और जो भी स्कीमा होता है वो फेच करता है वो क्रॉलर जाता है. फॉर एग्जाम्पल S3 एक डेटा सोर्स है, ठीक है,
क्रॉलर क्या करता है, मैंने सेट कर दी क्रॉलर, मैं अभी बताऊंगी आपको क्रॉलर कैसा सेट करते हैं। तो वो क्या करेगा, S3 पे जाएगा, जो लोकेशन हमने दी है वहां पे जाके जो नाम दिया है फाइल का सर्च करने का, वो फाइल सर्च करेगा। ठीक है, अब वो फाइल जिस फॉर्मेट में भी है, आइदर इट इज इन CSV, आइदर इट इज इन पाकेट, इट विल फेच दैट फाइल एंड स्टोर इनटू द, मतलब वो स्टोर कर लेगा कहाँ, डेटा कैटलॉग में उसका मेटा डेटा स्टोर करके। और जो भी है डेटा सोर्सेस हम प्रोवाइड करेंगे, और जो भी डेटाबेस हम यहाँ पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू, उस डेटाबेस में ये फाइल फेच होके एक टेबल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या हम मैनुअल भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं अगर हमको स्कीमा चेंज करना है, अगर नहीं हमको सेम स्कीमा रखना है, तो ये फाइल का जो भी स्कीमा है, दिस विल ऑटोमेटिकली कॉपी इनटू अ न्यू टेबल इनटू अ डेटाबेस व्हिच वी हैव मेंशन इन द ग्लू। तो क्रॉलर क्या करता है, बस यहाँ जाता है, फाइल सर्च करता है एंड बैक टू द डेटाबेस हम देते हैं, वो डेटाबेस में वो डेटा को सेव कर लेता है, वट एवर द फॉर्म, जो भी इस यहाँ पर डेटा रहेगा वो सेम फॉर्मेट में। हाँ, सिर्फ हम अगर ड्यूरिंग हम मैनुअल अगर कुछ टेबल स्कीमा चेंज करते हैं या मैनुअली कुछ टेबल बनाते हैं, तो उस चीज में चेंज होगा डेटा, अदरवाइज वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्रॉलर का ये काम है। यहाँ तक समझ में आया इमरान को, या और किसी को कोई डाउट है क्रॉलर के बारे में? इस स्कीमा का पाइस्पार्क कोड प्लीज एक्सप्लेन इफ यू हैव। पाइस्पार्क कोड, अच्छा 1 मिनट हम लोग देखेंगे, वन बाय वन जाएंगे। पाइथन एंड पाइस्पार्क की कुछ 1 मिनट के कुछ प्रोग्राम्स कोड फॉर्मेट कॉमन है तो एक ओवरव्यू दे सकते हैं तो। अच्छा, पाइथन और पाइस्पार्क के कुछ प्रोग्राम कोड, हाँ, पाइथन और पाइस्पार्क इज नथिंग बट स्पार्क बेस्ड ऑन अ पाइथन। whenever you want to use python with the help of whenever you want to use spark, sorry, with the help of python, then you have to import some libraries का difference होता है कि आपको PySpark यूज करना है तो कुछ आपको लाइब्रेरीज पाइथन के डाउनलोड करने होते हैं, एंड वट एवर द कोड इन स्पार्क, जो भी पाई स्पार्क का फॉर्मेट है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि डेटा फ्रेम ही यूज कर सकते हैं हम पाई स्पार्क के कोड में, और हम लोग RDD यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। What are other function of data catalog rather than holding मेटा डेटा? अभी के लिए तो आप बस ये याद रखो कि वो मेटा डेटा बस स्टोर करता है, और लॉन्ग टाइम जो भी डेटा रहेगा, जो भी मेटा डेटा रहेगा, वो उसी में डेटा कैटलॉग में, और वो परसिस्टेंट है। और जो भी जॉब रहेगा, जॉब का भी जो भी हम एक जॉब क्रिएट करें, तो जॉब का मेटा डेटा, जॉब की इंफॉर्मेशन जो भी डेफिनेशन रहेंगी वो भी स्टोर करेगा। बेसिकली मेटा डेटा होल्डर के लिए डेटा कैटलॉग है, ताकि हम जो भी जॉब हमने सेव की है तो वो इजीली हम रिट्राइव कर सके। ओके, और जो भी हमारा AWS का एनवायरनमेंट है, मतलब AWS के ग्लू का जो डेटा है, जो मेटा डेटा है, हर एक सर्विस का मेटा डेटा स्टोर करने के लिए उसका खुद का डेटाबेस होता है, तो दैट इज इन दिस केस इट्स अ ग्लू कैटलॉग। ओके, इन glue catalog is nothing but glue data catalog is nothing but it's a metadata database, or it's a persistent metadata store, okay, in AWS, for which use the AWS glue। इतना हम बोल सकते हैं। ओके, तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द AWS glue। हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ तो देखो, डिफरेंट नोटबुक्स के थ्रू भी हम डेटा फेच कर सकते हैं अगर कोई प्रोग्रामर को, यहाँ पे मैं बताऊंगी। और विजुअल ETLs भी है जो हम यूज करेंगे अभी हमारे, और जॉब मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। डेटा कैटलॉग टेबल, मतलब मेटा डेटा का जितना भी मेटा डेटा रहेगा उसके टेबल्स क्रिएट होंगे, एंड वी हैव that metadata। Okay, data connection, in data connection different connectors we are using. So if we want to connect with the Redshift, then we have to create a connection with the Redshift cluster, and if we have some another data sources like Hive and other stuff, then we will use JDBC ODBC driver and
same with the other services. If we have a RDS, then we also use JDBC ODBC driver for connecting to the RDS. Okay, so different connection we are use. तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डेटा कैटलॉग, एक टैब है जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे डेटा बेसिस है। तो जितने भी डेटा बेसिस हम बनाएंगे और या पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो डेटाबेस में यहाँ पर से होंगे। उसके बाद टेबल्स होंगे, जितने भी टेबल्स हम फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन स्टोर दिस। ओके, ये स्कीमा रजिस्ट्री जो है, दिस इज रिलेटेड टू सम स्ट्रीमिंग स्पार्क जॉब्स के लिए, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे कनेक्शन तो मैंने आपको भी बताया कि डिफरेंट कनेक्शन है। और दिस इज द क्रॉलर। ओके, तो यहाँ पे क्रॉलर वी कैन क्रिएट। अब सबसे पहले हम जो करेंगे वो एक क्रॉलर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो डेटाबेस मैंने आपको बताई है कि मैंने सेम कस्टमर डेटाबेस का डेटाबेस बनाया है, और विद द हेल्प ऑफ क्रॉलर आई हैव एडेड दिस फाइल। ओके, मैं अभी ये डिलीट कर देती हूँ फाइल, और हम क्रॉलर की मदद से यहाँ फिर से फाइल टेबल डालेंगे। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, so come back to our topic। ओके, तो लेट्स कम टू क्रॉलर। मैं अभी ये क्रॉलर को भी डिलीट कर देती हूँ ताकि हमको परेशानी ना हो। Okay, now we don't have any crawler, so we just create a new crawler for fetching the data from S3। Okay, we are just creating this crawler। कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप इसको। एंड क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। डेटा सोर्स, यहाँ पे आपको डेटा सोर्स देना है। ओके, तो ऐड अ डेटा सोर्स मैं करती हूँ। यहाँ पे S3 मेरा डेटा है। ओके, नेटवर्क का हमको ज़्यादा, यहाँ पे S3 का पाथ देना है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज करती हूँ। ये बकेट है मेरी, यहाँ से मेरे को कस्टमर डेटाबेस में से, सॉरी, ये फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ मैं। ओके, दिस इज माय required data source which I have to insert into the data store of the glue। okay, यहाँ पे सेम सेटिंग रखनी है। सब फोल्डर में भी चेक करेगा वो, अगर कुछ है तो, अगर नहीं है तो फिर विल रिवर्ट बैक। ओके, ये डेटा सोर्स ऐड हो चुका है। ठीक है, हाँ, नाउ वी हैव टू कीप द आई एम रोल। ऐसा आई एम रोल हमको बनाना है जिसको एक्सेस हो S3 का। तो मैंने एक आई एम रोल बनाया था जिसको फुल एक्सेस था, तो वो आई एम रोल मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 1 minute, if we miss some security, no, nothing much in that। नाउ वी हैव टू चूज अ डेटाबेस। तो अभी जो हमने डेटाबेस बनाया है, कस्टम डेटाबेस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट गो ऑन टू दिस डेटाबेस टैब एंड क्रिएट डेटाबेस एंड गिव द नेम ऑफ दैट डेटाबेस। जस्ट एक नाम देना है हमको, फिर वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आपको। ओके, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया कि कौन से डेटाबेस में ये फाइल मेरी सेव होनी है। ओके, अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेस रहेंगे तो वो यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, उसमें से आपको कौन सा चूज करना है, यू कैन सेलेक्ट एंड गो फर्दर। ओके, नाउ एडवांस 1 minute ऑप्शन, नथिंग मच। ओके, यहाँ पे शेड्यूल करना है अपने क्रॉलर को। यहाँ पे मैं अभी ऑन डिमांड सेटिंग चेक कर रही हूँ। वी कैन शेड्यूल इट अर्ली डेली बेसिस एंड वीकली बेसिस। ओके, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। तो ये जो हमारी है, ये पूरी फाइल है। अब यहाँ पे मतलब ये सारी सेटिंग है, यहाँ पे आपको रिव्यू करना है। यू कैन रिव्यू, एडिट इट एंड यू कैन एडिट एंड जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट क्रॉलर। ओके,
now our crawler has successfully created. Okay, just go to crawler refresh. Okay, तो ये यहाँ पे हम crawler successfully create हो गया. Now we can select that crawler and run. After running that crawler, the data will store into the database. Okay, अभी आप सिर्फ डेटाबेस में चेक करो, यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. Though we have created a crawler, but we have not run it yet. Okay, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है. अब जैसे ही मैं crawler रन करूंगी, डेटा will store into that database. कहाँ से डेटा लेगा वो? S3 का जो लोकेशन हमने दिए वहां से. तो अभी ये रनिंग स्टेट में गया है. इट विल टेक सम टाइम. ओके, यहाँ तक किसी को कोई, जब तक ये रन होता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग. रिमूव कस्टमर CSV क्यों रिमूव करना है? If I want to automate the whole process, we use lambda function. लैम्बडा फंक्शन भी यूज होता है, मैं बताऊंगी कहाँ यूज होता है इन फ्यूचर. लेकिन अभी के लिए, अभी जो जॉब है, हम जस्ट डेटा ले रहे हैं और उसको CSV से पाकेट में चेंज कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, लैम्बडा फंक्शन भी यूज होता है. बहुत हमको लेंथी स्क्रिप्ट या बहुत ज़्यादा मतलब स्क्रिप्टिंग तरीके से हमको डेटा उठाना है, तो वी कैन जस्ट ऑटोमेट द होल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा फंक्शन. ओके, स्क्रीन नॉट विजिबल अगेन. पुराने मैसेजेस हो. ओके ओके फाइन. कुणाल, आप रिमूव क्यों करने को बोल रहे हैं कस्टमर CSV? अभी हम डेटा ले रहे हैं वहां से. If I want to give access to different user of my Redshift cluster and give some specific access, so how we gave them? मतलब एक यूजर है, उसको आपको रेडशिफ्ट का एक्सेस देना है, S3 का एक्सेस देना है और ग्लू से एक्सेस देना है. तो आप नया यूजर क्रिएट करिए या रोल क्रिएट कर देंगे, वैसा नहीं होगा. आपके पास एक यूजर रहेगा, यू विल क्रिएट दैट यूजर इनटू IAMA with the help of IAM users. Okay, and you have to create one policy. With that policy, you have to attach the S3 full access something, or whatever the read only access, whatever you want to provide to that particular user. You can add that role or policy to that role, and that role should be added by that user. Okay, तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी यूजर है, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाना होगा और वो यूजर को ग्रुप में ऐड करना होगा. एंड दैट ग्रुप विल फेच द सॉरी दैट पॉलिसी. ओके, और दैट रोल. तो फिर आप उसकी मदद से आप असाइन कर ले सकते हो ना. अभी तो मैंने अभी जस्ट के ज़्यादा बर्डन ना हो, मैंने फुल एक्सेस दे दिया उसको, ग्लू के जो मैंने बनाया था रोल उसको. IAM यूजर को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उस पे, मतलब वो ऐसा खुद से नहीं समझ में आएगा. जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे रोल, जब तक आप दे नहीं सकोगे रोल, तो तब तक नहीं समझ में आता है कि कहाँ क्या हो रहा है. तो एक बार ऐसा करना कि एक अकाउंट बना के आप चेक कर लेना सारे रोल्स, 2-4 जो भी सर्विसेज है जिसमें आपको फेच करना है वो सर्विस.
तो उसका रोल क्रिएट करके एक्सेस देके यू कैन फेच दैट। ओके, तो लेट हम जाते हैं, ये होप सो रेड, हाँ ये तो रन हो गया है सक्सेसफुली। Now we can check the database and directly we can go to the tables. So here we can find our database. तो कहाँ है वो database? This is the location where which we have given. Okay. So ये अब यहाँ पे सेव हो गया है। Okay. नाउ अभी हमको जॉब बनाना है एक, तो ये ऐसा डेटा यहाँ से हम लोग फेच कर सकते हैं। ओके, और फिर हम क्वेरी भी कर सकते हैं और फिर ये डेटा को हम रेडशिफ्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट अ जॉब। ओके, ईटीएल जॉब है तो हम विजुअल ईटीएल प्रोसेस यूज करेंगे टू क्रिएट दैट जॉब। ओके, यहाँ पे राइट नाउ अभी कोई जॉब रन नहीं हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, जुपिटर नोटबुक से भी हम वो जॉब रन कर सकते हैं। कोई अगर स्क्रिप्ट है हमारे पास तो वो स्क्रिप्ट अपलोड कर के, या पाइथन शेल स्क्रिप्ट है जो भी है हम अपलोड करके वी कैन रन दैट जॉब। तो अभी हम यहाँ पे विजुअल विद सोर्स एंड टारगेट, जो हमारा सोर्स है वो S3 रहेगा और टारगेट भी हमारा S3 ही रहेगा। अभी के लिए हम लोग वो जॉब रन करते हैं। Now we are into this console and we just take the data from this data source है। यहाँ पे हमको S3 का URL सेलेक्ट करना है। हमारा जो डेटा सोर्स है वो CSV फाइल है जो कि कस्टमर डेटा में है, इस वाली फाइल। ओके, सॉरी, हाँ ये फाइल वो ऑटोमेटिकली ले लेगा वहाँ से, जितने भी फोल्डर है वो स्कैन करके ये वाले फोल्डर से ले लेगा। ओके, डेटा फॉर्मेट कौन सा है? वो CSV फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्क्रिप्ट। तो ये जो स्क्रिप्ट है दिस विल गोइंग टू स्टोर इनटू दैट स्क्रिप्ट फोल्डर। ओके, जॉब डिटेल्स में आ जाओ, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो जॉब का। हमारे ये ट्रांसफर फाइल S3 टू, नहीं ये ट्रांसफर नहीं करें, CSV टू पैकेट कर। हाँ यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद नाम देने के बाद यहाँ पे हमको आई एम रोल चूज करना है। जो भी आई एम रोल से हमको डेटा मतलब जो भी एक्सेस है उस आई एम रोल को उस बकेट पे, तो हम वो दे। तो मैंने ग्लू को फुल एक्सेस दे रखा है। यहाँ पे देखो स्पार्क वर्जन और पाइथन का वर्जन जो भी है यूज हो रहा है, लैंग्वेज पाइथन यूज हो रही है वो जॉब को रन करने के लिए। आपको ये जितने भी वर्कर नोड है जो भी है एडवांस कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो पाथ है, जो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक खुद से टेप फोल्डर बना रहा है S3 में, लेकिन वी हैव द दिस, so we can select that स्क्रिप्ट जाएगी इधर। ओके, स्क्रिप्ट उस पाथ में स्टोर हो जाएंगी एंड उसके बाद स्पार्क जॉब्स भी है वो भी एक अलग से फोल्डर बना के हम सेव कर सकते हैं, या फिर अभी जिसमें सेव हो रहा है उसको होने देते हैं। नाउ वी हैव जो भी टेम्पररी डेटा और पाथ है वो, मतलब जो फेच करने के लिए लगेगा वो टेम्पररी डायरेक्टरी का हम उसमें स्टोर करेंगे। टेम्प डेटा कनेक्शन की तो अभी जो बाय डिफॉल्ट कनेक्शन है वो ये वही लेगा।
ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यूजफुल में आते हैं, टारगेट ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को। Prerna, can you please unmute yourself because voice is not coming. या यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट फंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस। नोड ऐड करना है अपने को। 1 मिनट। वी आर क्या हमको चेंज स्कीमा हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज स्कीमा हो रहा है हमारा। डेटा सोर्स यहाँ पे ले रहे हैं हम अमेजोन S3। ओके,
ठीक है, and target data set, I'm searching for that actually. This one. तो टारगेट जो डेटा है हमारा, यहाँ पे टारगेट डेटा हमने सेलेक्ट किया है, अमेज़न S3 ही नाम दिया है उसको। ओके, यहाँ पे हम जो भी डेटा से उसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट उसका पाकेट में हम चेंज कर रहे हैं और कॉम्प्रेशन स्नैप यूज़ करें। यहाँ पे हमको लोकेशन देना है कि कौन से टारगेट लोकेशन है हमारा। वी आर चूजिंग दैट लोकेशन फोल्डर, कस्टमर डेटा में ये वाला फोल्डर है यहाँ। अभी लास्ट टाइम हमने डिलीट किया था डेटा, कुछ नहीं था, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर रनिंग दिस जॉब डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू पाकेट फॉर्मेट एंड यहाँ पे ऑप्शन भी देता है आपको, डेटा कैटलॉग आपको अपडेट करना है, नहीं करना है, नया टेबल क्रिएट करना है, तो हम नया टेबल भी क्रिएट कर दे सकते हैं। जो डेटाबेस है वो उसी डेटाबेस में। ओके, टेबल नेम दे देंगे हम। तो ये हमारी सारी सेटिंग हो गई है। अच्छा, 2 टारगेट ले लिया इसने। नाउ ये जो भी है हमारी स्क्रिप्ट, ओहो, यहाँ पे 1 मिनट, उसने 2 टारगेट ले लिए हैं। 1 minute, I'm just deleting this one, using this one, okay। इसलिए वो स्क्रिप्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, स्कीमा भी चेंज हो रहा है यहाँ पे हमारा, और जो भी है ये सिंपल है। नाउ अवर जॉब इज रेडी, स्क्रिप्ट इज ऑल्सो रेडी। ओके, तो जो भी स्क्रिप्ट का हमने लोकेशन दिया है वो वहाँ स्क्रिप्ट, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं आपके, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर और वांट टू ऐड सम की फीचर्स इन दैट स्क्रिप्ट देन यू कैन। ओके, किसी ने पूछा था कि पाइस्पार्क कैसा, तो ये जो है यहाँ पे देखो, ये पाइथन की लाइब्रेरीज है जो AWS ग्लू के हम सब यूटिल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है टू रन दिस प्रोग्राम वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर रहा है वो। तो हम अगर डायरेक्टली कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो इन डेप्थ नॉलेज हमको स्क्रिप्टिंग का होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फिर यू कैन, जितना जस्ट इनफ नॉलेज ऑफ पाइथन इट विल हेल्प फॉर यू अंडरस्टैंड करने के लिए। और पाइस्पार्क तो आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखो हम फ्रेम बना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जो भी है स्कीमा चेंज के लिए, क्या चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है यहाँ पे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होके आपको जो भी है वो डेटाबेस में आपके अपडेट हो रहा है, ठीक है। और फिर जॉब कमिट कर रहा है वो। यहाँ पे हम लोग उसका पाकेट, ब्लू पाकेट सेट फॉर्मेट, यहाँ पे देखो वो पाकेट में चेंज कर रहा है। ये टारगेट टेबल जो हमने दिया, अगर हम ये नहीं देते तो ये नहीं लेता था यहाँ पे अमेज़न का, ठीक है। तो जो भी है इन डेप्थ आप स्क्रिप्ट
को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ईच एंड एवरी लाइन को आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी अब यहाँ पे जॉब डिटेल्स जो हमने पहले दे दी थी, दैट इज ऑल्सो देयर, नथिंग मच इज रिक्वायर्ड। सो नाउ वी कैन रन द जॉब। ओके, यहाँ पे अरे अच्छा, जॉब रन नहीं हुई, सॉरी। जॉब तो बना ली हमने, अब नाउ वी विल क्लिक ऑन रन। तो ये रनिंग स्टेट में जा रही है। लेट द जॉब विल बी सक्सेस। अगर हम उसको वेट करते हैं कि वो सक्सेसफुल, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम है और क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, CSV फाइल्स S3 से ले रहे हैं और वापस उसको पाकेट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करके वापस पाकेट में सेव कर रहे हैं और CSV सेव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछे। मैं तो सॉरी, हाउ वी चेंज फॉर्मेट टू पाकेट। हमने अभी मैंने बताया ना आपको कि कैसा हम लोग चेंज कर रहे हैं। पहले एक जॉब बनाए, वहां पे हमने सोर्स डेटा लिया। कोई बात नहीं, मैं और एक बार बता तो ये जॉब को कंप्लीट होने दो पहले। मैंने एक सोर्स डेटा लिया, क्या किया मैंने, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने क्या किया, विजुअल ETL पे गई मैं, सॉरी। वहां पे मैंने जॉब पे सर्च क्लिक किया, उसके बाद ETL जॉब्स पे, एंड देन मैंने सोर्स डेटा लिया, ठीक है। पहले मेरा सोर्स डेटा का लोकेशन दिया, S3 का जो लोकेशन था वो, एंड देन उसके बाद जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पे गई और स्क्रिप्ट में एक फ़ोल्डर आज बोल रहा था, वो पूछ रहा था कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ सेव होनी है। तो मैंने S3 का ही लोकेशन दिया उसको, जो मैंने स्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया था बकेट में, वो बकेट का लोकेशन स्क्रिप्ट नाम के फ़ोल्डर में वो स्क्रिप्ट सेव किया। और उसके जो भी लॉग हिस्ट्री, दो इट इज़ अ स्पार्क जॉब, तो जो भी लॉग हिस्ट्री और जो भी स्पार्क के लॉग्स क्रिएट होंगे वो भी एक फ़ोल्डर में यहाँ पे रैंडमली उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। मैंने उसका फ़ोल्डर नहीं बनाया था, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली वो एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में स्टोर कर देगा लॉग्स को, S3 में ही। और उसके बाद मैंने क्या दिया, हाँ, एक टेम्पररी डेटा जो फ़ोल्डर बनाया था, जो टेम्पररी यूज़ के लिए जो भी स्कीमा चेंज करने के लिए या जो भी बफर मेमोरी के लिए बफर रहेगा टेबल वो, तो उसके लिए वो टेम्पररी डेटा उसमें स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट किया। मैं अभी आपको बता रही हूँ जस्ट, और एक बार मैं आपको रिपीट करूंगी ऑन ग्लू। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हमने, तो उसमें से मैंने चेंज स्कीमा वाला लिया, ठीक है। मैं स्कीमा भी चेंज कर रही हूँ, जो भी चेंज करना है, जो भी अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम स्कीमा चेंज करके उसको पैकेट फाइल फॉर्मेट में सेव कर रही हूँ। तो पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया चेंज स्कीमा वाला। फिर चेंज स्कीमा किस फॉर्म में होना आपको, वहां पे दो ऑप्शन थे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे, जेसॉन था, CSV था, तो मैंने पैकेट चूज किया, ठीक है। फिर पैकेट फाइल में फिर जो भी डेटा आएगा वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, तो उसको S3 का लोकेशन दिया, ठीक है, पैकेट फोल्डर वाला। और फिर जो टेबल है उसका नया टेबल भी क्रिएट किया मैंने ग्लू में, और उसको नाम दिया समथिंग पैकेट, ऐसा कुछ नाम दिया उसको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस किया, ये जॉब बना दी मैंने। उसके बाद आई हैव रन दैट जॉब। तो अभी वो जॉब रन हो रही है। तो अभी हम चेक करेंगे कि जॉब रन हो गई है या नहीं। अगर रन हो गई है सक्सेसफुली, देखो सक्सीडेड, मतलब हमारा जो डेटा है वो S3 फोल्डर में चला गया। देखो जॉब का नाम, यहाँ पे आपकी जॉब डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स जो जॉब। अब इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो जॉब को, कि जहाँ वहाँ पे शेड्यूलर भी था ना, तो वो हमने सेट नहीं किया था अभी, जस्ट हमको अभी के लिए चेक करना था। अगर आपको आवरली बेसिस या वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे करना है तो कर सकते हैं। तो क्या हो गया,
तो जॉब आईडी है। तो अब यहाँ पे अभी आ जाएंगे हम डेटाबेस में। हमने डेटाबेस में बोला था कि और एक और टेबल क्रिएट होना है, मगर वो टेबल्स में जाते हैं, सॉरी, डेटाबेस टेबल तो क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे। लेट्स सी इन द S3 bucket कि whether the data is stored in the packet file format or not। तो हमने ये वाला फोल्डर दिया था, यहाँ पे भी डेटा नहीं सेव हुआ। कैसा कैसा हो सकता है? जॉब तो रन हो गई। तो हम एक बार फिर से जॉब पे जाते हैं। रन करते एक बार जॉब को। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गई है जॉब। नहीं तो फिर से और एक बार हम बना लेंगे जॉब, नो प्रॉब्लम।
अभी आ रही है? अच्छा, आ रही है, थैंक गॉड। ओके ओके ओके, तो अभी समझा या? मेरी तो आवाज़ ही नहीं थी कितने टाइम से। अभी आप लोगों को समझा या कुछ रिपीट करना है? अभी मे बी ये जॉब रन हो चुकी होंगी। जॉब तो सक्सेसफुल बता रहा है। तो लेट्स सी कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। हाँ, ये हो गया देखो, अभी रन हो गई सक्सेसफुली। देखो हमने जो पाकेट नाम का जो टेबल दिया था कि जॉब रन होने पे पाकेट नाम का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। तो वी कैन सी द स्कीमा ऑफ दैट टेबल। ओके, यहाँ पे हमने चेंज स्कीमा किया में, मतलब जब जो मैपिंग है वो हमने चेंज नहीं की, बट या ये CSV से पाकेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और S3 में भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया देखो, पार्ट फाइल यहाँ पे स्पार्क के रन हुए, स्पार्क प्रोग्राम रन हुआ जो CSV को पाकेट फाइल फॉर्मेट में चेंज किया उसने। ओके, तो अभी समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसा करना है, ETL जॉब्स कैसा रन करना है, ग्लू में कैसा आपको ऑटोमेशन करना है। इस पे कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं ऑडिबल नहीं थी तो फिर से रिपीट करूँ क्या? अच्छा, रिपीट करना है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो देखा होगा ना आपने, देखा तो होगा ना, मैं रिपीट कर देती हूँ, नो इशू, बट कुछ तो समझा होगा ना देखने पर भी, या थोड़ा सा भी नहीं समझा? क्या यस समझा या नहीं समझा? यस। हाँ, आवाज नहीं थी, मैं रिपीट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, देखने पे तो समझा है ना थोड़ा बहुत, अभी फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इशू नहीं है कोई। ओके, हाँ, हम CSV फाइल लिए थे हमने S3 से, एक लोकेशन से, और उसको वापस S3 में स्टोर किया पाकेट फाइल फॉर्मेट में। ओके, हाँ, मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। तो देखो ये मैंने CSV में यहाँ पे बनाया था। फिर से एक जॉब रन कर देते क्या? मे बी इट विल स्टोर इन सम। ओके, फिर से हम क्या करते, एक जॉब पे जाते, मैं शॉर्ट में समझाती। यहाँ पे हमको सोर्स एंड टारगेट हमको सेलेक्ट करना है और हमको एक जॉब क्रिएट करना है। सो आई जस्ट विल क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, देखो यहाँ पे सोर्स और टारगेट, अभी देखो यहाँ पे आ गया। अब मेरा सोर्स है तो मैं इसको सोर्स ले लूंगी, यहाँ पे जो भी मेरा सोर्स है, मेरा सोर्स है S3 में, ये बकेट से, ये वाले डेटा फोल्डर से, ये वाले डेटाबेस से CSV फाइल फॉर्मेट है इसके अंदर। बताऊं क्या आपको? ये देखो डेटा लोड, ये एक CS, तो मैं ये फाइल डायरेक्टली चूज कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं फोल्डर भी सेलेक्ट करती हूँ और उस फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल है तो वो फोल्डर में से उसी फाइल को उठा लेगा। अगर नहीं, मल्टीपल फाइल है तो आपको उसका पर्टिकुलर लोकेशन देना होगा। ठीक है, अब जो फाइल ले रही हूँ मैं, अभी मैं सोर्स की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जो फाइल ले रही हूँ वो CSV फाइल फॉर्मेट है। ओके, ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, एडिशनल ऑप्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं देने को। ठीक है, तो ये सोर्स का मेरा हो गया। अब मैं आ रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रही हूँ मैं? चेंज स्कीमा कर रही हूँ सिर्फ। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर अब मैं टारगेट पे आ जाती हूँ। लास्ट टाइम जो मेरा था वो ट्रांसफॉर्मेशन मिस हो गया था, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अलग से यहाँ से नोड ऐड करके, वहाँ से चेंज स्कीमा सेलेक्ट करके किया था। ठीक है, यहाँ से आप नोड ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसके अलावा भी आपको और कुछ करना है तो यू कैन ऐड दैट नोड। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंज स्कीमा कर रही हूँ, तो देखो ये नोड है। फिर ये फॉर्मेट जो है मेरे को उसको पैकेट में बनाना है। ठीक है, वो कॉम्प्रेशन टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको है। तब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्राउज़ करके जो लोकेशन है मेरा टारगेट का, जहाँ पे सेव होनी है मेरी फाइल पैकेट फाइल फॉर्मेट में, तो वो ये वाला फ़ोल्डर है, मैं यहाँ दे रही हूँ। अब मेबी वो दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, नाउ आई हैव, अब मैं क्या कर रही हूँ कि या तो हम टेबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, मतलब दो ऑप्शन है टेबल बनाने के।
कि कैटलॉग, डेटा कैटलॉग में टेबल बनना चाहिए, उसका अपडेट स्कीमा और न्यू पार्टीशन क्रिएट होने चाहिए या नहीं। तो या फिर एग्जिस्टिंग स्कीमा है तो मैं एग्जिस्टिंग का करूंगी, तो मैं एग्जिस्टिंग जो भी स्कीमा है उस पे हो जाएगा, या फिर अपडेट, तो हम लोग वैसे भी स्कीमा अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट स्कीमा में सेलेक्ट करके कौन से डेटाबेस में, जो मेरे भी ग्लू में डेटाबेस है वो डेटाबेस में से मैं एक डेटाबेस जो मेरे को जहाँ सेव करना है वो सिलेक्ट करूंगी, एंड देन टेबल का नाम दे दूंगी, पाकेट 2 दे देती हूँ मैं, ठीक है। नाउ वी आर गुड टू गो, ओके। तो ये मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो गई यहाँ पे। मैं उसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ, एडिट भी कर सकती हूँ। अगर आपको आता है अच्छे से कुछ और ऐड करने पाइथन एंड स्पार्क, देन यू कैन ऐड इनटू दैट, ओके। फिर जॉब डिटेल्स जो है, यहाँ पे मेरे को जॉब का नाम देना है, जो भी अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो आपको मल्टीपल जॉब्स रहेंगे, तो पर्टिकुलर जॉब आईडी आपके पास रहेगा विथ पर्टिकुलर नेम। तो मैं अभी CSV टू पाकेट 2 कर देती हूँ इसको। आई एम रोल, जो भी आपका आई एम रोल है असाइन किया हुआ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट आई एम रोल आपको एक्सेस मिलेगा, और उसी से आपको फेच करना होगा S3 का डेटा। तो यहाँ पे मेरे को लोकेशन देना है स्क्रिप्ट की। अब मैं चाहूँ तो स्क्रिप्ट सेव भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ना भी कर सकती हूँ। इट्स बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी रन कर रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट सेव कर लेनी चाहिए। तो मैं जो स्क्रिप्ट सेव कर रही हूँ वो मेरे ही बकेट के अंदर स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में सेव कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री लॉग्स जनरेट होंगे, इसका भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी किया नहीं है तो मैं जस्ट उसको स्किप कर रही हूँ। और या फिर आप स्पार्क हिस्ट्री सर्वर पे भी लॉग्स का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं हिस्ट्री बकेट में। हाँ, यहाँ पे एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए ये टेम्परेरी फोल्डर मैंने किया था, ओके। तो ये आपकी जॉब फाइनल रेडी है। नाउ यू कैन सेव दैट जॉब। ये सेव हो गई, नाउ यू विल रन दैट जॉब। मैं एक मिनट बाहर जाती हूँ, वहाँ से रन करती हूँ। देखो अभी मेरे पास 2 जॉब आ गए हैं, सॉरी एक ही बता रहा है। हम्म, ये CSV टू पाकेट 2 ये मैंने अभी क्रिएट किया, तो मैं इसको रन करती हूँ सेलेक्ट करके। आवाज आ रही है ना आप लोग को? अच्छा, समझ गया यहाँ तक के। अभी वो जॉब रन हो रही है, उसके बाद आप चेक कर लो कि डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी हो गया कि हमने S3 टू S3 हमने किया, ठीक है। एक इन शॉर्ट में आपको अथीना का बता देती हूँ, और रेड शिफ्ट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो अभी तो लेक्चर का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक मिनट, हाँ। अथीना जो है, दिस इज ऑल्सो द सर्वरलेस कंप्यूटिंग है। यहाँ पे भी हम क्वेरी कर सकते हैं, बट अथीना इज बेसिकली यूज टू क्वेरी द डेटा विच इज ऑलरेडी स्टोर इन S3 ओनली। S3 के डेटा को ही क्वेरी करना है अगर हमको, विदाउट यूजिंग एनी डेटा वेयर हाउस टेक्निक। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में S3 का डेटा है बहुत सारा, S3 में है, लेकिन मेरे को उसको डायरेक्टली क्वेरी करना है विदाउट यूजिंग एनी डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक और एनी टूल, तो मैं AWS अथीना नाम के एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जो मैं डेटा जो उठाऊंगी वो S3 से ही उठाऊंगी, डायरेक्टली उसको क्वेरी करूंगी और वापस S3 में ही सेव करूंगी। तो ये अथीना काम करता है। रेडशिफ्ट में क्या होता है, हम रेडशिफ्ट में खुद के डेटाबेस और खुद के टेबल्स बनाते हैं, और वो डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक है, मतलब बहुत सारा पिटाबाइट्स ऑफ डेटा वी कैन स्टोर। बट जो ऑलरेडी S3 में डेटा है, पिटाबाइट्स, मे बी इट इज अ पिटाबाइट ऑफ डेटा, बट हमको डायरेक्टली क्वेरी करना है उस डेटा को, देन वी कैन यूज एथीना, ओके। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर जॉब रन हो गई होंगी तो 2 फोल्डर अभी नहीं हुई शायद, तो 2 फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। एक मिनट, अभी जॉब चल रही है, रन हो रही है। जॉब की मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम लोग।
फेल हो गई। ओह शिट, फेल हो गई वो। व्हाट्स द रीजन क्यों फेल हुई वो? लास्ट टाइम जो हमने रन किया था वो सक्सीड हुई थी, और डेटा टाइप पता नहीं क्यों फेल हुई वो। ओके, वी विल सी कि मैं देखती हूँ क्यों फेल हुई हो। ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू एथीना। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ एथीना का। यहाँ पे देखो, जो भी AWS डेटा कैटलॉग है वो यूज़ कर रहा है। कस्टमर डेटाबेस जो मैंने बनाया था वो ले रहा है वो यहाँ से, और यहाँ पे कस्टमर CSV का जो डेटा है, पार्टीशन डेटा है वो, ठीक है। मैं उसको क्वेरी भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमको, S3 में जो कुछ भी रन करने से पहले वी हैव मस्ट वन फोल्डर और रिजल्ट फोल्डर प्रेजेंट इनटू S3 बकेट। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया था लास्ट टाइम, रिजल्ट फोल्डर एथीना रिजल्ट वाला, ये वाला बनाया था। तो यहाँ पे जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट होगा अथीना का, वो यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। तो मैं अभी फिर से बताती हूँ एक बार आपको कि कैसा होगा सेव हो। पहले तो हमको कनेक्शन फोल्डर बन गया है, सेटिंग में जाना है, मैनेज में जाना है, और यहाँ पे हमको रिजल्ट फोल्डर का लोकेशन देना है, ठीक है। कहाँ पे? एथीना के डैशबोर्ड में, सेटिंग में जाके, मैनेज में जाके, यहाँ पे इट विल क्वेरी ओनली द डेटा विच इज प्रेजेंट इन S3 बकेट्स, ओके। उसको डायरेक्टली क्वेरी करने के लिए हम अथीना यूज करें, तो सिर्फ S3 का ही डेटा हम यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। तो मैं रिजल्ट, जो भी डेटा मैं ले रही हूँ ठीक है, बट मैं सेव कहाँ कर रही हूँ रिजल्ट, दैट इज इनटू टेक्स्ट बकेट, ओके। तो ये सेव हो गया ऑलरेडी। एडिटर में जा रही हूँ, ये वाले मेरे को उसको रन करना है, तो मैं प्रीव्यू टेबल करूँगी। देखो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है डेटा। मैं इसको रन अगेन करती हूँ। जो भी डेटा है ना, तो वो मुझको रिजल्ट में दिख जाएगा। दिख रहा ये डेटा। अगर मैं पार्केट फाइल फॉर्मेट को करती हूँ, ये वाले उसको प्रीव्यू टेबल, द क्वेरी गेट चेंज, ओके। लाइक स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर डेटाबेस, ये डेटाबेस का नाम है, डॉट पाकेट, जो भी डेटाबेस है यहाँ पे, उसमें से टेबल कौन सा है मेरा, पाकेट, और उसका 10 लिमिट है, आई एम रनिंग दिस क्वेरी। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो विजिबल टू मी, ओके। तो सिमिलरली जब आपको एसक्यूएल क्वेरी आती है, तो यू कैन सेलेक्ट योर डेटाबेस, सेलेक्ट योर टेबल एंड क्वेरी दैट डेटा, ओके। तो बिफोर दैट यू हैव टू मैनेज द क्रिएट अ रिजल्ट इनटू द बकेट, ओके। तो जो भी आपकी रिजल्ट है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट, ये बकेट ना रिजल्ट। तो मेरा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 2 रिजल्ट सेव हो गए। 2 बार मैंने क्वेरी, इतने इतने हुए, सॉरी, जितनी बार मैंने क्वेरी रन की उतनी बार उसके फाइनल रिजल्ट क्रिएट हुए। देखिए CSV फाइल एक बार रन की अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो ये उसका रिजल्ट है। और उसके बाद मैंने पाकेट वाली फाइल रन की, तो दिस इज मेटा डेटा ऑफ दैट पाकेट फाइल फॉर्मेट, ओके। आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और अगर हुआ इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर, तो वी विल मतलब हम देखेंगे कि रेड शिफ्ट में कैसा हम लोग डेटा लाएंगे विद द हेल्प ऑफ यू, ओके। नाउ इट्स टू लेट। तो यहाँ कैन वी ऑल्सो यूज ग्लू टू क्वेरी, कुछ पूछा था, तो क्वेरी इन एथीना। नहीं, ग्लू हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि हम ETL प्रोसेस के लिए ग्लू यूज होता है। क्वेरी करने के लिए हमको आइदर वी हैव टू यूज रेडशिफ्ट, अगर हमारा डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक है। नहीं, अगर हमको डायरेक्टली S3 में जो भी डेटा है उसमें अगर हमको क्वेरी करना है, तो वी यूज एथीना, ओके। डेटा को क्वेरी करने के लिए हम कभी भी ग्लू यूज नहीं करेंगे। ग्लू इज completely a pipeline building tool used in AWS, okay. Any resource to deep dive into glue, YouTube or doc,
यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको अपने बहुत सारे कोर्सेज रिलेटेड टू ग्लू। हाँ, और अगर नहीं तो बेहतर है, जो भी आप एक भी सर्विस पकड़ रहे हो ना, जैसा एक या दो जो भी डेटा इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो यूट्यूब के अलावा देखिए आप यूडीमी पे चेक कर लें। यूडीमी पे जो है 400-500 से ज़्यादा कभी बताते हैं वो 3000, लेकिन वो नहीं लेना, उस दिन नहीं लेना, या फिर थोड़ी देर के बाद ट्राई करें तो वही सेम कोर्स 400, 450, 500, 550 तक मिल जाता, तो तब ले लेना। तो अ, अब उसमें भी क्या होता है, डेटा इंजीनियरिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो देखो, डेवलपर के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो देखो। इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर देन गो विद द डेवलपर कोर्सेज। अदरवाइज डेटा इंजीनियरिंग के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ो। हाँ, डेटा इंजीनियर के लिए बहुत सारे सर्विसेज रिक्वायर्ड है मानती हूँ मैं, बट मतलब कोडिंग नॉलेज थोड़ा कम हो जाता है। और अगर कोडिंग करना है आप लोगों को तो डेवलपर के लिए आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतर है कि यूडीमी पे जो कोर्सेज है वो कर लो आप लोग, क्योंकि वो डीप डाइव रहते हैं और अच्छे रहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन के लिए आप यूट्यूब के कोर्सेज, मतलब यूट्यूब पे जो अवेलेबल है उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक, और इंशाल्लाह अभी कभी मौका मिला तो हम लोग देखेंगे आगे इन फ्यूचर। सजेस्ट कौन सा सजेस्ट करूँ मैं आप लोगों को। अब मैं अगर आपके इस पे, अब आपको कहाँ मूव होना है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट ना, कि आपको क्या आप फील्ड चूज कर रहे हो। अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, हाँ, तो फिर ना आपको हदूप जो सर ने पढ़ाया है उसको कंप्लीट करो अच्छे से, उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिग डेटा में हदूप इज कंपलसरी, ओके, फॉर डेटा इंजीनियर। जो भी नॉलेज है वो सर ने जो पढ़ाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप उसको जाओ। नेक्स्ट है बिग डेटा में आप स्पार्क हाइव करो। पर्टिकुलरली हाइव तो रहेगा थोड़ा बहुत, जो भी उसके क्वेरीज है, एसक्यूएल कर लिया तो हाइव भी आ जाएगा, ठीक है, नो इशू इन दैट। अब रहा स्पार्क। स्पार्क में आपको क्या करना है, 3 लैंग्वेज है स्पार्क में, स्कैला और पाईस्पार्क एंड एसक्यूएल। तो मे बी आपको प्रोजेक्ट पे तो कुछ भी मिल सकता है, बट अगर आपको अभी के लिए करना है तो इजी करना है तो यू मे गो विद द स्कैला ओनली, ओके। अगर नहीं थोड़ा डीप डाइव जाना है तो पाईस्पार्क चूज करते हैं। पाइथन इज कंपलसरी फॉर डेटा इंजीनियर, थर्ड पॉइंट। एंड उसके बाद जो है डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक ने रेड शिफ्ट तो पढ़ लिया है, तो उसको थोड़ा और डीप डाइव के लिए यू कैन गो विद यूडीमी कोर्सेज, ओके। तो एडब्ल्यूएस में रेड शिफ्ट, ग्लू, एथीना और लैम्बडा करना है आपको डेटा इंजीनियर के लिए। अगर नहीं अजोर साइड जा रहे हैं तो सिमिलर, देखो मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं, जीसीपी के लिए सिमिलर जो भी है टेक्निक्स वो चेक कर लो, सर्विसेज जीसीपी में अवेलेबल जो भी क्लाउड यूज कर रहे हो। अजोर के अभी आप यूज कर सकते हो, अजोर भी एक अच्छा है क्लाउड, वो भी यूज कर सकते हैं। यूडेमी पे का कोर्स मेरे पास अभी तो लिंक नहीं है, बट आप ऐसा डायरेक्टली डाल दो ना, रेड शिफ्ट डाल दो डायरेक्टली, यू कैन। हाँ, डेटा ब्रिक्स, डेटा ब्रिक्स करना है तो अजोर क्लाउड क्लाउड पे जाओ, फिर ए डब्ल्यू एस क्लाउड मत करो। कैसा होता है ना, अभी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, कंपनी में अभी मेरे को ना डेटा ब्रिक्स भी करने को लगाए थे, बट इट्स क्योंकि वो एजोर क्लाउड पे है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे को, बट मैंने थोड़ा सा ही किया, बट मिला नहीं मेरे को प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पे होता है कि आपको, वो लोग बोलेंगे कि क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को, और स्केल अप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो अभी जस्ट फॉर इंटरव्यू फोकस ऑन दिस 10 to 12 टेक्निक्स फॉर डेटा इंजीनियर अगर जाना है। नहीं तो फिर हदूप है, स्टिक टू हदूप, सिक्योरिटी अच्छे से करो, ऑन द बेसिस ऑफ हदूप एंड सिक्योरिटी यू विल गेट द जॉब। सर ने जितना पढ़ाया बहुत बहुत ज़्यादा सफिशियंट है हदूप एंड सिक्योरिटी का अगर करना है, ठीक है। हाँ, बिग डेटा टेक्निक में स्पार्क में से जो भी आपको करना है यू कैन चूज दैट, ओके। लेकिन सीखो, विच सर्विसेज आर यू हैंडलिंग इन यूर ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो देखो बोला ना मैंने कि मेरे को सीडीएच क्लस्टर है, अभी सीडीएच क्लस्टर की पूरी सिक्योरिटी मेरे पास है, मतलब किसको क्या एक्सेस देना है, तो ऑथराइजेशन सेंटर यूज कर रही हूँ मैं, और
हाइव है और इंटीग्रेशन हुआ है मेरा, मतलब पावर बीआई डैशबोर्ड से कैसा इंटीग्रेट करना है डेटा सोर्सेज को, हाइव के जो डेटा सोर्सेज है कितना डेटा देना है, कौन से टेबल बताना है उनको, ये वाला हुआ है। और मेरे प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं, और इसके अलावा हाइव डेवलपर का काम है मेरे पास ज़्यादातर। ये तो एडमिन प्लस साइमल्टेनियसली, क्योंकि प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है था हमारा, छोटा ही प्रोजेक्ट था, 4-5 लोग ही थे टीम में। तो छोटा प्रोजेक्ट था, इसलिए अब हदूप से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है, जितना भी वर्क है, वो मेरे को ही हैंडल करना पड़े, वेदर इट इज़ अ डेटा इंजीनियर रोल, वेदर इट इज़ अ एडमिन रोल, और डेवलपर का भी मैंने किया। हाइव था इसलिए चल गया, तो वो कर लिया मैंने, क्वेरीज वगैरह ही था। हाँ, अभी जो नया प्रोजेक्ट है उसमें मे बी दे आर, मतलब डेटा इंजीनियर रोल पे असाइन करेंगे वो, तो उसके लिए यही रेड शिफ्ट, अथीना, ग्लू, पाइथन, पाइस्पार्क, हाइव, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। ओके, सो होप एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर। पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, और जो भी सर समझाते हैं, जो भी क्लाउड एज में बोला जाता है, तो उसको फॉलो करो, मॉक अच्छे से दो आप लोग के। और मॉक में भी आप, कुछ नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हो, मतलब पैनल को पूछना डायरेक्टली कि उसका आंसर कैसे वे में दे सकते हैं, तो पैनल इतना हेल्पफुल है, वो बता देंगे। ओके, ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।